Good morning, everyone. We will start the session within 5 to 10 minutes. Hi, everyone. A very warm welcome to our Ultimate Experience and HRMS learning series. This is the part 3 of the series. In first two series, we have covered TDS section, PT setup section, probation and confirmation policies. My name is Sonia Lalwani, and it is my pleasure to welcome you back once again to the series. And the today's topic is very challenging. Yet a great opportunity for HR, especially in the context of tracking employees working on daily basis. We have a very critical team who's working on it, and we'll introduce our today's speaker so that you can take insights and reflections about how we can track work from home employees daily work and their attendance. So before announcing the presenters, I just announce the agenda. What is our today's agenda? So our agenda is to get the brief overview of our Ultimatix mobile application with the timesheet and to get the idea about how we can track and manage leave and attendance of employees. Their daily reports. We will follow this session by question answers.
Now, I would like to announce the presenters. So, joining with us today are Mr. Koshti and Ms. Nidhi Pandya. We both are from support and implementation team and working with us since a very long time. So, without a further ado, I will like to invite Ms. Nidhi Pandya to start their session. Thank you, Sonia. So, good morning, everyone. I hope everyone is safe at home. So, today I, Nidhi Pandya, and my colleague Hardik will represent you to the glimpse of timesheet module and mobile application. Yeah. Good morning, everyone. This is Hardik Kosti, also part of implementation team. So, first of all, let me brief you that along with my mobile application, that is, you may also say Ultimatic Sparrow, what we are providing with it. So first of all, you can say various solutions that we are providing along with our mobile application. And first is employee profile. So you may say that in a mobile application, employee can see their each information like their name, their designation, their uh, what can say employee ID, reporting, and every their personal details from our mobile application at any time and at anywhere. So they do not need to go कि भाई आपको जाओ और आपको वेब ओपन करना है. आप सब डिटेल्स आपके मोबाइल एप्लीकेशन में एम्प्लॉय खुद के मोबाइल एप्लीकेशन में कहीं से भी व्यू कर सकता है. नेक्स्ट वी आर प्रोवाइडिंग इज अटेंडेंस ट्रैकिंग. This is the most important thing that we are providing along with our mobile application. That आपके यहाँ पे बहुत सारे organizations होंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग फील्ड पर वर्क कर रहे होंगे, तो it might be quite hard for them कि भाई ऑफिस पे आए, punch in and punch out करे. Quite hard, right? So for that we are providing a mobile application. उनको सिर्फ क्या करना है, फील्ड पे जहाँ पे भी वो वर्क करे वहां पे जाके उनको सिर्फ इन एंड आउट करना है. लाइकवाइज उसकी अटेंडेंस फेच हो जाएगी. अब एक बोनस पॉइंट कि भाई इसके साथ हमने जीपीएस भी कनेक्ट किया है, तो जैसे ही वो लोग पंच इन एंड पंच आउट करोगे उन लोगों का जीपीएस से ट्रैक होगा उनका लाइव लोकेशन और HR do not need to worry about that all. Then another thing, we are facilitated with our mobile application easily. For an example, अभी एम्प्लॉय को रात को याद आया कि भाई मुझे कल के लिए लीव डालना है, या फिर कहीं से भी याद आया कि मुझे लीव डालना है पर मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है, मुझे लीव ऐड तो करना है, राइट? तो दे डोंट नीड टू वरी. उनको सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन पर लॉगिन करना है, उनको लीव एप्लीकेशन करना है जो भी है वो, और डायरेक्ट उनको रिपोर्टिंग मैनेजर को मिल जाएगी. सेम वे वो लोग अटेंडेंस रेगुलेशन, लीव, कॉम्प ऑफ एवरी रिक्वेस्ट उनके मोबाइल से ही कर सकते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट. So approval. तो अप्रूवल मोबाइल एप्लीकेशन में किस तरह यूज होगा? एम्प्लॉयज मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू लीव रजिस्टर कर सकता है. जैसे कि एम्प्लॉयज ने अपना लीव एप्लीकेशन किया है, ठीक है, लीव है, अटेंडेंस रेगुलेशन है, कॉम्प ऑफ है, वो अप्लाई कर सकता है. जैसे ही वो एप्लीकेशन करेगा उनके जो रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग मैनेजर है उनको नोटिफिकेशन जाएगा कि ये बंदे ने लीव एप्लीकेशन किया हुआ है. वो जो भी उनके जो रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग मैनेजर है उनको मेल से भी नोटिफिकेशन मिलेगा. उनको वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वो अप्रूवल कर सकते हैं. उनको वेब एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सेकंड, सैलरी. तो सैलरी मोबाइल एप्लीकेशन में एम्प्लॉयज तब व्यू और डाउनलोड कर सकता है तब जब एम्प्लॉयज उनके जो रिस्पेक्टिव HR एंड एडमिन एम्प्लॉयज है वो सैलरी प्रोसेस करेंगे. सैलरी प्रोसेस करने के बाद वो एम्प्लॉयज का ऑल दी एम्प्लॉयज का सैलरी पब्लिश करेंगे. उसके बाद ही एम्प्लॉयज मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सैलरी व्यू कर सकता है एंड डाउनलोड भी कर सकता है. थर्ड, एम्प्लॉय एंगेजमेंट. एम्प्लॉय एंगेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन में कंपनी में
किसका बर्थडे एनिवर्सरी है, तो जब भी एम्प्लॉय अपना लॉगिन करेगा मोबाइल एप्लीकेशन में, तभी उनको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आज कंपनी में किसका बर्थडे है और एनिवर्सरी है। तो मोबाइल एप्लीकेशन आपको किस तरह इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आपको मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है अल्टीमेटिक्स पेरोल। जैसे ही आप फिल्टर करोगे, सर्च करोगे, तभी आपको एक ओटी करके आपको आइकॉन मिलेगी, व्यू होगा। आपको वहां पर अल्टीमेटिक्स पेरोल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। नाउ आपकी मोबाइल एप्लीकेशन तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई। नाउ योर नेक्स्ट पार्ट इज टू आपको उनको लॉगिन करना है आपके आईडी एंड पासवर्ड से। तो बिफोर लॉगिन आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको सर्वर कनेक्शन करना है। एवरी एचआर को ऑरेंज टीम से सर्वर का नाम मिलेगा और एचआर को वो सेम सर्वर का नाम अपने एम्प्लॉय को पास करना है। जो भी सर्वर का नाम है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्वर कनेक्शन पे आपको जाके वो ऐड करना है नाम एंड देन कनेक्ट करना है। तो ये हुआ आपका पहला स्टेप के सर्वर कनेक्शन। नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको आपके आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करना है। अब ये आईडी पासवर्ड इज नथिंग बट द आईडी एंड पासवर्ड दैट यू आर यूजिंग फॉर टू लॉग इन इनटू योर वेब। आप वेब में जो भी आईडी पासवर्ड यूज कर रहे हो वही आपको यहाँ पे इंसर्ट करके लॉगिन करना है। Along with it, we are also providing forget password facility. मतलब कि अगर आपने पासवर्ड आपका भूल गए हो तो सिंपली गो टू द फॉरगेट पासवर्ड एंड यहाँ से आपको एक आपके मोबाइल में ही एक ओटीपी नंबर आएगा। जैसे आप यहाँ पे जाओगे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी से आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। तो ये हुआ आपका मोबाइल एप्लीकेशन में आपने लॉगिन कर दिया। नाउ जैसे ही लॉगिन करोगे आपको आपकी स्क्रीन पे ये होम स्क्रीन दिखेगा, जैसे कि मिडल वाला इमेज शो कर रहा है। यहाँ पे है उनकी एम्प्लॉइज की माय प्रोफाइल, माय अटेंडेंस। ये है ग्राफिकल व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ की अटेंडेंस। लाइक उस पर्टिकुलर मंथ में एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट है, कितनी लीव ली है, एब्सेंट डे कितने हैं, लाइकवाइज अगर हॉलीडे एंड पिक ऑफ है, वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगी। देन एट द बॉटम ऑफ द पेज आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट क्लॉक इन टाइम कौन सा था, मतलब एम्प्लॉय ने लास्ट कब क्लॉक इन किया था वो भी टाइम यहाँ पे शो करेगा। नाउ लेट मी ब्रीफ यू कि भाई आप माय प्रोफाइल में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा। जैसे ही आप यहाँ पे टिक मार्क करोगे माय प्रोफाइल में, तो ये जो राइट हैंड साइड वाली इमेज है वो यहाँ पे ओपन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय का फोटोग्राफ, उनका डेजिग्नेशन, उनका डिपार्टमेंट, उनका आईडी क्या है, रिपोर्टिंग मैनेजर कौन से है उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ब्लड ग्रुप, यूएनएन, पान नंबर, एवरीथिंग विल बी रेप्लिकेट हियर। मतलब माय प्रोफाइल में एम्प्लॉय सभी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड व्यू कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि माय अटेंडेंस, जैसे ही एम्प्लॉय माय अटेंडेंस पर टिक मार्क करेगा उस पर्टिकुलर मंथ के लिए पूरी अटेंडेंस उनकी वहां पे वो देख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल आज की डेट हुई 15th ऑफ अप्रैल, जस्ट एन एग्जांपल। तो जैसे ही मैं माय अटेंडेंस पर टिक मार्क करूंगी तो मुझे 1 से 15 तारीख तक की सब अटेंडेंस यहाँ पे शो करेगी। नाउ इन होम पेज यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम ये सिंबल, ठीक है, जैसे ही ये वाले सिंबल पे आप टिक मार्क करोगे पूरा एक मेन्यू ओपन होगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि लीव है, अटेंडेंस है, अप्रूवल, सैलरी, मतलब ये पूरा मेन मेन्यू है कि यहाँ पे जाके ये टिक मार्क करके आप मेन्यू पे जा सकते हो। नाउ मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट। Okay, so clocking. तो clocking is man used for attendance tracking. जैसे नितिन आपको पहले बताया था कि बाय क्लॉकिंग अगर कोई एम्प्लॉयज को अपनी अटेंडेंस रजिस्टर करनी है, उसके लिए आपको होम पेज में जाना है। होम पेज में जाने के बाद आपको मेनू में जाना है और वहां से आपको क्लॉकिंग पर टिक मार्क करना है। जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लॉकिंग मतलब हुआ आपका इन पंच और क्लॉक आउट
मतलब हुआ आपका आउटपुट, और ये दोनों जीपीएस लोकेशन से कनेक्टेड है। सो एम्प्लॉय का लोकेशन भी आप क्रैक कर सकते हो कि एम्प्लॉयज ने कब कहां पर क्लॉक इन और क्लॉक आउट किया हुआ है। आपको लोकेशन भी आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा हुआ कि जब मैंने क्लॉक इन किया था कटरिया आर्केड लिखा हुआ है, तो उस तरह आपको क्लॉक इन और कहां पर और कितने बजे किया है वो भी आप देख सकते हो। जब भी आप क्लॉक इन क्लॉक आउट करोगे तभी आपको एक फेस आप सेल्फी भी ले सकते हो कि एम्प्लॉय जब क्लॉक इन करेगा तब वो फेस सेल्फी ले सकता है, ठीक है। और जैसे ही क्लॉक इन और क्लॉक आउट टाइम के साथ आप देख सकते हो लास्ट में आपने कब क्लॉक इन या तो क्लॉक आउट कब और कितने बजे किया था, वो भी आप यहाँ से देख सकोगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब आपने क्लॉक इन तो कर दिया, मतलब आप रोज क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट कर रहे हो, तो आपकी अटेंडेंस तो फेच हो रही है। बट एज एन एम्प्लॉय अगर मुझे मेरी अटेंडेंस देखनी है कि भाई पूरे वीक का मेरा अटेंडेंस क्या है, मैं लेट हुई हूँ या मैंने टाइम पे किया है, या वेदर ये फेच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, मेनू में जाके मुझे अटेंडेंस पर टिक मार्क करना है। जैसे मैं अटेंडेंस पे टिक मार्क करूंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे मेरा नाम दिखेगा और साथ में ये ग्रेटर देन वाला सिंबल दिखेगा। तो जैसे ही ये ग्रेटर देन वाला सिंबल पर मैं टिक मार्क करूंगी, मुझे एक पूरी एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आई कैन सी कि पूरे वीक का मतलब पूरे मंथ का डे वाइज मेरा क्लॉकिंग का टाइम कौन सा है एंड क्लॉक आउट का टाइम कौन सा है, डेट वाइज आपको दिखाएगा। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल के चलो मैं तो रोज कर रही हूँ क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट, बट एक दिन मैं भूल गई कि मेरा इस दिन का मिस हो गया, या फिर एक दिन मेरा हाफ डे का ही है और मुझे अटेंडेंस रेगुलाइजेशन की रिक्वेस्ट ऐड करनी है, तो सिंपली क्या करना है मुझे, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे ट्यूसडे का करना है, तो यहाँ पे जैसे नोटपैड वाला सिंबल दिख रहा है, मुझे वहां पे जाके टिक मार्क करना है। जैसे मैं टिक मार्क करूंगी एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर दिन के लिए मेरा टाइमिंग क्या था, मेरा शिफ्ट क्या था, मुझे रीजन सिलेक्ट करने हैं जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएंगे। डिस्क्रिप्शन लिखना है कि भाई मुझे क्यों मेरी अटेंडेंस रेगुलाइजेशन की रिक्वेस्ट करनी है, एंड वेदर इट्स फुल डे और हाफ डे या फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, जो भी करना है वो ऑप्शन मुझे यहाँ से मिलेगा। और तब डायरेक्ट जाके मुझे करना है सबमिट। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन पे टिक मार्क करूंगी, ये रिक्वेस्ट चली जाएगी मेरे रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग मैनेजर के पास। नाउ ये तो हुआ कि एज एन एम्प्लॉय मैंने मेरा अटेंडेंस तो देख लिया, बट फॉर एन एग्जाम्पल मैं ही एक रिपोर्टिंग मैनेजर हूँ और मेरे अंडर ही 10 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, तो मुझे सबकी अटेंडेंस व्यू करनी है। तो उसके लिए भी मुझे सेम पाथ फॉलो करना है, मुझे अटेंडेंस पे जाना है। जैसे ही अटेंडेंस पे मैं जाऊंगी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे माई टीम लिखा हुआ है, मतलब जितने भी एम्प्लॉय मेरे अंडर काम कर रहे हैं उन सभी का अटेंडेंस का डेटा यहाँ पे होगा, और मैं किसी का भी कभी भी यहाँ से देख सकती हूँ। तो दैट्स हाउ ऑल अटेंडेंस can see by employee as well as their respective reporting manager. Now moving forward to next. जैसे मैंने आपको पहले लीव का बताया कि एम्प्लॉयज किस तरह लीव एप्लीकेशन करें, ठीक है। तो अपने एम्प्लॉयज मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लीव एप्लीकेशन कर सकता है। तो आपको सबसे पहले होम पेज में जाना है। होम पेज में जाने के बाद आपको लीव सिलेक्ट करना है। आप जैसे लीव सिलेक्ट करोगे, सेकंड स्क्रीनशॉट में आपको प्लस का साइन है, वहां से आपको लीव एप्लीकेशन करना है, ठीक है। आप जैसे लीव एप्लीकेशन करोगे, थर्ड स्क्रीनशॉट में आपका जो भी लीव रिक्वेस्ट आपको रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग मैनेजर को असाइन एप्लीकेशन करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना है आपकी जो कंपनी की पॉलिसी है, जैसे कि CL है, PL है, SL है, ठीक है, वॉट एवर इट इज, जो भी लीव है वो आपको यहाँ से लीव सिलेक्ट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी थर्ड स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हो प्रिविलेज लीव, मुझे PL लीव एप्लीकेशन करना है। तो मैं सबसे पहले लीव सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कौन सी लीव एप्लीकेशन करना है, ठीक है। वहां से सेकंड में है फ्रॉम डेट, आपको कौन से डेट का लीव लेना है वो आपको फ्रॉम डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही फ्रॉम डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन है पीरियड के नंबर ऑफ डेज, तो मुझे कितने दिन की लीव लेना है,
ठीक है। वो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट वो टू डेट लेके आएगा भाई कि मुझे 14 तारीख का एक दिन का लीव लेना है, ठीक है। यहाँ से मुझे टाइप सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप 1 सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे फुल डे ही शो करेगा। अगर मैं 0.5 डेज का लीव ले रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टाइप शो करेगा या मुझे फर्स्ट हाफ का लीव लेना है या तो सेकंड हाफ का। इस तरह ही मुझे पीरियड में 1.5 दिन का लीव लेना है, तो उस तरह ही आप यहाँ पे 1.5 लीव डालोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से डेट का फुल डे लेना है और कौन सी डेट का फर्स्ट और सेकंड हाफ का लेना है। उसके बाद आपको रीजन मेंशन करना है कि भाई लीव जो आप ले रहे हो वो पर्सनल के लिए है, इमरजेंसी लीव है या तो कुछ फंक्शन है। जैसे ही आप रीजन सिलेक्ट करना है, रीजन मेंशन करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे वैसे ही आपके जो भी रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग मैनेजर है उनको नोटिफिकेशन जाएगा कि मेरे जो भी टीम मेंबर्स में से एम्प्लॉयज ने लीव एप्लीकेशन किया है वो उनको मिलेगा एप्लीकेशन में। इस तरह ही एम्प्लॉयज अपना बैलेंस भी चेक कर सकता है। जैसे कि मुझे अभी आप देख रहे हो फर्स्ट स्क्रीनशॉट में एम्प्लॉयज कि मेरा करंट मंथ में कितना बैलेंस है, ठीक है। जैसे कि पीएल, तो पीएल में मेरा ओपनिंग कितना है, यूज कितना किया है मैंने, बैलेंस मेरा कितना है, वो भी आप यहाँ से मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू चेक कर पाओगे। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे प्रीवियस मंथ का चेक करना है, तो मुझे आप देख रहे हो बैलेंस के नीचे एक मंथ डाउन की होगा, आप वहां से प्रीवियस मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेंज बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेंज करोगे तो प्रीवियस मंथ का आपको जो भी लीव का बैलेंस है वो वहां पर शो करेगा। जैसे कि पीएल सेम, जैसे कि मैंने अप्रैल में बताया उस तरह ही मार्च में आपका कितना ओपनिंग था, कितना यूज किया आपने और कितना बैलेंस है वो आपको वहां से आप चेक कर सकते हो। राइट साइड पे सेकंड स्क्रीनशॉट किस, जैसे कि मैंने लीव एप्लीकेशन जो किया था पीएल जो 14 डेट का, तो मुझे यहाँ से देख सकते हो कि मेरा जो भी मैंने लीव का रिक्वेस्ट एप्लीकेशन किया था वो मेरा जो भी मेरे रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग मैनेजर है उनको उनके जैसे उनको मिल रहा है वो अप्रूवल रिजेक्ट जो भी कर रहे हैं आप यहाँ से देख सकते हो, स्टेटस देख सकते हो कि मेरा एक्चुअली एप्लीकेशन जो था वो मेरा अप्रूवल हुआ या रिजेक्ट हुआ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। जैसे कि हार्दिक ने बताया कि लीव की रिक्वेस्ट तो आपने कर दी, एम्प्लॉयज ने कर दी, ठीक है, तो उसके जो रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग मैनेजर है उनको मेल थ्रू भी इंटीमेशन मिलेगा, उनको उनके वेब पोर्टल पे भी मिलेगा। सेम उनको जो भी रिक्वेस्ट आई है वो भी वो लोग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई और अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए उनको क्या करना है, मेन्यू में जाना है, अप्रूवल्स में जाना है। जैसे ही अप्रूवल्स पे वो जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितनी भी रिक्वेस्ट आई होगी, वेदर इट इज लीव की, अटेंडेंस रेगुलराइजेशन की, कॉम्पोफ की या फिर लीव कैंसिलेशन की, जो भी रिक्वेस्ट आई होगी उनके टीम में से वो सब उनको यहाँ पे शो करेगा। लाइकवाइज जैसे वेब पोर्टल में वो करते हैं उनको अप्रूव और रिजेक्ट करना है डायरेक्ट मोबाइल में से ही। और या ईमेल नोटिफिकेशन भी एम्प्लॉय को जाएगा ही जाएगा, बट इफ उनको मोबाइल से करना है तो दे कैन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट। सैलरी, तो मैंने जैसे ही आपको पहले बताया कि पे स्लिप एम्प्लॉयज कब और कैसे डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बताया कि आपके जो भी रिस्पेक्टिव एचआर या एडमिन एम्प्लॉयज है वो सैलरी प्रोसेस करेंगे। सैलरी प्रोसेस करने के बाद जिस मंथ का सैलरी उनको पब्लिश करना है, तो जैसे ही वो पब्लिश करेंगे एम्प्लॉयज मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन होकर सैलरी स्लिप व्यू भी कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे प्रीवियस मंथ का पे स्लिप डाउनलोड करना है या तो व्यू करना है, तो मुझे यहाँ से मंथ सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही हम मंथ सिलेक्ट करोगे सेम चेंज बटन पर क्लिक करना है।
उस तरह ही आपको जिस मंथ का आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है मंथ, उस तरह आप सैलरी व्यू कर पाओगे। सेम डाउनलोड भी कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। जैसे कि हार्दिक ने पहले बताया था, द अनदर फीचर दैट वी आर प्रोवाइडिंग विथ आवर मोबाइल एप्लीकेशन इज द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। जैसे कि आप सभी सोशल मीडिया साइट, सभी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज कर रही होंगे कि आपके फॉर एन एग्जांपल फेसबुक के पे आपके जितने भी फ्रेंड्स है, जो पर्टिकुलर दिन पे जिसका भी बर्थडे है, तो वो सब नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है। सेम वाइज अगर आपकी कंपनी में दैट पर्टिकुलर दिन के लिए किसी का बर्थडे वगैरह है, तो आप देख सकते हो कि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे होम पेज पे मिलेगी कि भाई दिस पर्सन है, उनका आज बर्थडे है या फिर कुछ एनिवर्सरी है। सेम अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन से जाके व्यू करना है, तो मेन्यू में जाइए, बर्थडे एंड एनिवर्सरी पे टिक मार्क कीजिए। जैसे ही टिक मार्क करोगे, आज के दिन में जितने भी लोगों का बर्थडे या फिर एनिवर्सरी है, उनका लिस्ट यहाँ पे शो करेगा। लाइकवाइज आप उसको लाइक एंड कमेंट दोनों मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट। हॉलीडे। तो जनरली हर एक कंपनी में 1 जनवरी के बाद पूरे साल का हॉलीडे लिस्ट पब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही एम्प्लॉयज कैन सी हॉलीडे कैलेंडर फ्रॉम मोबाइल एप्लीकेशन, तो इसके लिए आपको सेम मेनू में जाना है, उसके बाद हॉलीडे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप देख सकते हो कि पूरे साल का हॉलीडे कैलेंडर डिस्प्ले होगा। जैसे कि मैंने बताया था, एचआर जो भी हॉलीडे मास्टर अपडेट करेंगे एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन में, जैसे ही अपडेट करने के बाद जो भी एम्प्लॉय होगा, वो जैसे ही लॉग इन करेगा, कंपनी का जो भी हॉलीडे है वो आपको यहाँ पे व्यू होगा। ठीक है, yes, our next is help desk module. तो आप अपनी कोई भी हेल्प डेस्क किस तरह यूज होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो आप अपनी कोई भी क्वेरी आपकी इंटरनल टीम के साथ शेयर कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आपका पीसी या तो लैपटॉप में कुछ इश्यू है, तो आप अपनी आईटी टीम को टिकट रेज कर सकते हो। और कुछ सैलरी, या तो सैलरी है, लीव है, या तो कुछ पॉलिसी रिलेटेड कुछ भी इश्यू आ रहा है, तो आप अपनी एचआर को भी टिकट रेज कर सकते हो। सो कैसे करना है टिकट रेज, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपको जाना है सबसे पहले मेनू में, सेम हेल्प डेस्क में जाना है। ठीक है, अब जैसे ही हेल्प डेस्क का क्लिक करोगे, एक न्यू विंडो ओपन होगा। ठीक है, वहां से आपको टिकट एप्लीकेशन में प्लस का साइन है, वहां से आपको ऐड करना है कि मुझे टिकट रेज करनी है। राइट, तो आपको जैसे ही करोगे, एक सेकंड थर्ड स्क्रीनशॉट में सेम न्यू पेज ओपन होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था आपको लीव, इस तरह ही टिकट सेम रेज करना है। अभी फॉर एन एग्जांपल में ले रहा हूँ आईटी, जैसे कि मेरा लैपटॉप में या तो कुछ सिस्टम में इश्यू आया। ठीक है, जैसे ही मेरे लैंड में इश्यू आया, या तो नेटवर्क डाउन है, या नेटवर्क रिलेटेड कुछ भी इश्यू है, लैपटॉप में कुछ इश्यू है। ठीक है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने आईटी सिलेक्ट किया है। ठीक है, आप जैसे दिख रहे हो यहाँ पे आपको आईटी सिलेक्ट करना है। एचआर रिलेटेड है तो आपको एचआर करना है, पॉलिसी के रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है आपको सिलेक्ट टाइप सिलेक्ट करना है, या तो मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यू आ रहा है, सिस्टम में है। ठीक है, तो उस तरह आपको यहाँ से टाइप सिलेक्ट करना है। फॉर एन एग्जांपल अभी सिस्टम मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सिस्टम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है कि भी मैंने जो टिकट रेज किया है, वो सिस्टम में या तो लैपटॉप में मुझे जो भी इश्यू आ रहा है, वो मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है कि मेरा लैंड में इश्यू है या व्हाटएवर। ठीक है, उसी तरह आप फोर्थ में आप देख रहे हो कि टिकट का प्रायोरिटी दिया हुआ है। मेरा सिस्टम में या लैपटॉप में प्रॉब्लम है, मुझे जल्द से जल्द करवाना है, या तो थोड़े टाइम के बाद भी करवा सकते हो, तो यहाँ पे आपको डाउन करोगे, आपको यहाँ पे मिलेगा भाई मुझे हाई लेवल है, हाई प्रायोरिटी है, लो है, मीडियम है, या अर्जेंट है। ठीक है, तो उस तरह आप यहाँ से प्रायोरिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन में। ठीक है,
आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ भी आपको रिलेटेड, जैसे कि एचआर में कुछ, मेरा पॉलिसी में कुछ चेंजेस करवाना है, तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको जो भी ब्राउज करवाना यहाँ से मैं करा सकते हैं। उसके बाद आपको करना है सेंड टू पर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड टू बटन पर क्लिक करोगे, जो भी आईटी एम्प्लॉयज, आईटी पर्सन होंगे, उनको एक टिकट की रिक्वेस्ट जाएगी कि भाई ये एम्प्लॉयज को ये सिस्टम में या तो लैपटॉप में जो भी इश्यू है, आप वो जैसे जल्द से जल्द वो टिकट भी जैसे ही वो खत्म करेगा, वो टिकट आईटी पर्सन क्लोज भी कर सकता है, वो भी आपको मिलेगा आगे। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। Now, another feature that we are providing with our mobile application is to policy and document. For an example, मेरे HR ने या फिर एडमिन पर्सन ने कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके एडमिन से पब्लिश किए हैं, और एज एन एम्प्लॉय मुझे व्यू करना है, तो सिंपली मुझे जाना है मेन्यू में, वहां जाके मुझे टिक मार्क करना है पॉलिसी एंड डॉक्यूमेंट्स पे। जैसे मैं टिक मार्क करूंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पब्लिश किए होंगे वो यहाँ पे जाके मैं व्यू कर सकूंगी। ये हुआ व्यू। अब एज एन एम्प्लॉय मेरे एचआर ने बोला कि भाई निधि, तुम्हारा ये कुछ डॉक्यूमेंट है, आपको सबमिट करवाने एज सुन एज पॉसिबल। तो ऑब्वियस अब थोड़ा अर्जेंट हो तो मैं वेब पे ओपन करूँ और कोई डॉक्यूमेंट उनको सेंड करूँ, उससे अच्छा है कि भाई मैं डायरेक्ट ही मेरे मोबाइल एप्लीकेशन से वो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट उनको सेंड कर दूँ। तो उनके लिए उनको क्या करना है, सेम आपको पॉलिसी एंड डॉक्यूमेंट्स में जाना है, देन टाइम पे टिक मार्क करना है। जैसे ही टिक मार्क करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। एंड ब्राउज में से अगर मुझे अटैचमेंट भी भेजना है तो मैं अटैचमेंट भी यहाँ से ज्वाइन कर सकती हूँ, सिंपली मुझे डायरेक्ट अपलोड करना है। तो दैट हाउ दिस policy and document feature will be provided along with our mobile application. Same, we are also providing a survey module. Survey module is nothing कि भाई कोई कंपनी के लिए HR को थोड़े क्वेश्चन अपने एम्प्लॉयज को पूछने हैं, लाइकवाइज उनको वो रिजल्ट चाहिए कि भाई हमारी कंपनी में फॉर एन एग्जांपल सिनारियो कैसा है कैसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चनरीज कि भाई HR ने पब्लिश किया है और उनको वो आंसर्स एम्प्लॉय के पास से चाहिए। तो एम्प्लॉयज को क्या करना है, सिंपल मेनू में जाना है, सर्वे पर टिक मार्क करना है, जो भी क्वेश्चनरीज होगी वो उनको क्वेश्चन देने हैं एंड सबमिट करना है। जैसे वो सबमिट करेंगे, वो सारे क्वेश्चन उनके रिस्पेक्टिव एचआर या फिर मैनेजर को पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हमने दिया है सेटिंग्स कि भाई आपका कैमरा इनेबल है या नहीं, आपको इनेबल करना है या नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस ट्रैकिंग के लिए कैमरा इनेबल होना कंपलसरी है, तो इट हैज टू बी ओपन हियर। अब आपको आपका करंट जो पासवर्ड है वो चेंज करना है, तो भी आप यहाँ पे जाके चेंज पासवर्ड में जाके कर सकते हो। अगर आपका कोई फीडबैक है या फिर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ से हमें कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज साइन आउट कि भाई फॉर एन एग्जांपल आपको अभी टेम्परेरी बेस या फिर किसी भी लिए आपको साइन आउट करना है, तो आपको मेन्यू में जाना है और डायरेक्टली साइन आउट कर देना है, ठीक है। बस एक बात याद रखिए कि भाई आपने साइन आउट कर दिया और नेक्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो, तो जैसे हमने पहले बताया कि लॉगिन के टाइम सर्वर कनेक्शन इज मैंडेटरी। तो एक बार सर्वर कनेक्शन हो गया, आपको हर बार सर्वर कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। एक बार हो गया, आपने लॉगिन कर लिया, आप साइन आउट कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम लॉगिन करना है तो सर्वर कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कनेक्टेड ही होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर मोबाइल एप्लीकेशन. So if you have any queries, you can also type here so that we can help you out. Thank you so much, Nidhi. Now we are into the second phase of this webinar. The next topic is how we can track our employees' daily reporting as they are working from home. So we'll start this session with Nidhi. Nidhi, you can continue. Yeah, thank you, Sonia. Okay, so we have seen कि भाई मोबाइल एप्लीकेशन फ्लो वो कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, we all see that, right? So our next session and next phase is to see about the timesheet module.
तो लेट मी ब्रीफ यू कि टाइमशीट मॉड्यूल है क्या. So it's very simple. For an example, if I'm the employee, I'm working on some particular project and my company wants to know. Hello? And my company wants to know. Please share your PPT again. Yeah, thank you. Okay. Yeah. And my company wants to know कि भाई that particular project मैंने कितना time spend किया है, and likewise they also want to know the costing कि भाई मेरे time के हिसाब से उस project पे मेरा costing कितना रहेगा along with the costing of that project. So let me brief you even more deeper. For an example, आपको एक consulting company हो या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो, ठीक है, और मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ और आपका जो क्लाइंट कंपनी है वो है ऑरेंज टेक्नोलॉजी. तो हम काम कर रहे हैं एक एक्स प्रोजेक्ट पे, ठीक है. तो आपको क्या करना है कि भाई निधि ने एक्स प्रोजेक्ट पे जितना भी काम किया है उसका उनको कॉस्टिंग चाहिए, लाइकवाइज उनका बिल बनाना है और अपने क्लाइंट कंपनी को प्रोवाइड करना है. तो इसके लिए ऑब्वियस निधि ने कौन से टाइम पे क्या काम किया है, कितने आवर्स काम किए, वो सभी डेटा का आपको एक मैप होना चाहिए, तो ही आप एक्यूरेटली वो डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, लाइकवाइज कॉस्टिंग भी कर सकते हो एंड बिल भी प्रोवाइड कर सकते हो. नाउ व्हाई टाइमशीट इज रिक्वायर्ड. जैसे ही मैंने बताया कि भाई मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं एक एक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 1 वीक. अब मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर आके मुझे पूछ रहा है कि निधि आपने लास्ट वीक पे कितना काम किया. तो ऑब्वियस एज एन एम्प्लॉय इट माइट बी हेडेक फॉर मी कि भाई मैं काम करूँ या फिर आपके आंसर्स दूं. दूसरा मुझे ये आएगा कि अब मुझे याद नहीं कि मैंने प्रोजेक्ट पे कल 1 घंटा स्पेंड किया था, 2.5 घंटा किया था और क्या काम किया था. एज ए ह्यूमन बीइंग आई कैन फॉरगेट इफ मैं एक साथ 2-3 प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ तो, राइट. एंड चलो उससे भी दूसरी बात कि भाई मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने कहाँ पे शेयर किए, कितना काम किया, बेस्ड ऑन दिस मुझे वो सभी डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगह पे जाके देखने हैं, पूरे वीक के मुझे वो फॉर्म करना है. और ये पूरी प्रोसेस में एक्यूरेसी कितनी मेरी कि मैं कितना ट्रू हूँ, वो मतलब 50% चांस है कि मैं 50% सही हो सकती है, 50% गलत, राइट. चलो तो भी मैंने वो टाइम शीट भर दिया, मैंने वो पूरी एक्सेल शीट भर दी. अब मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर को मैंने दे दिया. अब रिपोर्टिंग मैनेजर उसमें से बिल कैसे बनाएगा, और बिल बना दिया तो ये एक्यूरेट कितना होगा वी कैन नॉट से. सो फॉर दैट purpose and to overcome this all hurdles we are providing a very user friendly and very smooth process wise a timesheet module कि आप वेरी इजीली डेटा एंट्री कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो और अलोंग विथ वेरी एक्यूरेसी एंड इफिशिएंटली. और बोनस पॉइंट कि भाई चलो निधि काम करिए एक एक्स प्रोजेक्ट पे, तो माई मैनेजमेंट विल गेट टू नो कि भाई वो कितना टाइम वो उसके पीछे लगा रही है. और अगर मुझे कोई हर्डल्स आ रही है एज एन एम्प्लॉय तो दे गेट टू नो कि भाई ये काम आधे घंटे में होना चाहिए, इसके बदले निधि 2.5 घंटे लगा रही है, तो दे कैन स्केड्यूल आल्सो लाइकवाइज. तो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई टाइमशीट मॉड्यूल हमें क्यों चाहिए और कैसे करना है, राइट. अब कैसे करना है उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन पहले सिस्टम में आपको करना रहेगा. इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि आप टाइमशीट मॉड्यूल स्टार्ट करो उससे पहले थोड़े फॉर्मेलिटीज होगी जो आपको पहले इम्प्लीमेंट करनी है. देन यू कैन आस्क योर एम्प्लॉय कि भाई अब टाइमशीट फिलअप करो. तो इसके लिए आपको मेन 6 मास्टर्स पहले बनाने हैं. लेट्स गो एवरी वन बाय वन मास्टर्स. So this is my home page. Here you can see, here timesheet will be located here. Here timesheet will be located here. अब मुझे मेरे हर एक 6 मास्टर्स जो है मुझे 1 बाय 1 मास्टर्स बनाना है. तो जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन टाइमशीट मैं देख पाऊंगी इतने मास्टर्स अवेलेबल है, इतनी फैसिलिटी अवेलेबल है. तो गोइंग टू द फर्स्ट मास्टर, that is the client master. As I've told you कि you are a service provider company, तो आपके obvious 5-6 या 10 clients होंगे और आपको वो पहले डिफाइन करने रहेंगे. अब डेटा एक्यूरेसी चाहिए तो पहले कौन से क्लाइंट में क्या काम कर रहे हो वो
पहली आपकी मेजर रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको क्या करना है, पहले क्लाइंट मास्टर में जाके क्लाइंट बनाना है। तो टाइम शीट पे जाओ, क्लाइंट मास्टर पे जाओ एंड क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ऐड करो। लाइक क्लाइंट का नाम है, क्लाइंट का डिटेल है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, उनका एड्रेस है, और सिंपली वो जाके आपको सेव करना है। जैसे ही सेव कर दोगे आपका क्लाइंट मास्टर बन गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द प्रोजेक्ट मास्टर। अब जैसे बताया कि भाई प्रोजेक्ट मास्टर इंपॉर्टेंट क्यों है। अब एक क्लाइंट के लिए मैं 3 या 4 प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। जैसे पहले हमने देखा कि भाई एक्यूरेट रिजल्ट अपने हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले सब इम्प्लीमेंट करना है प्रॉपर वे। अब एक क्लाइंट के लिए मैं 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट चाहिए, तो मुझे वो 2 प्रोजेक्ट भी डिफाइन करने रहेंगे, 2 या 3 जितने प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ उस पे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, टाइम शीट पे जाना है, प्रोजेक्ट मास्टर पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐड करना है। अगर नया प्रोजेक्ट आपको बनाना है तो ऐड पे जाओ, और जैसे ही ऐड करोगे ये विंडो आपके यहाँ पे ओपन होगा, जो दिखाएगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक, फिर प्रोजेक्ट वो है, उनका टोटल कॉस्ट कितना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो असाइन रिपोर्टिंग मैनेजर, मतलब रिपोर्टिंग मैनेजर इज नथिंग बट द एम्प्लॉइज, कि भाई मेरे ये प्रोजेक्ट के लिए मेरे कितने एम्प्लॉय और कौन कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो आपकी कंपनी में सभी एम्प्लॉयज का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। जो भी लोग ये प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, आपको उन लोगों को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको अपडेट करना है। तो दिस हाउ आपने बना दिया आपका प्रोजेक्ट मास्टर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द टास्क मास्टर। अब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो आपका मतलब टास्क डिवाइडेड होता है। जैसे एज एन इम्प्लीमेंटेशन टीम मुझे क्या करना होता है, अगर मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आ रही है तो मुझे पहले मेरे क्लाइंट से मीटिंग करनी रहेगी, देन मुझे डेटा गैदर करना रहेगा, देन मैं वो डेटा अपडेट करूंगी मैं ऑरेंज में, देन टेस्ट रन करूंगी, देन आई डिलीवर दिस टू माय क्लाइंट, राइट। तो दिस आर माय टास्क। पहले डेटा मैंने मीटिंग की, देन डेटा गैदर किया, देन इम्प्लीमेंटेशन किया, टेस्ट रन किया एंड डिलीवर किया। तो इतने सारे मेरे टास्क हुए दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको इसके लिए बनाना है टास्क मास्टर। सिंपली टाइम शीट में जाओ, टास्क मास्टर में जाओ और आपको ऐड करना है। जैसे ऐड करोगे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे कि आपको टास्क का नाम लिखना है, ये टास्क कौन से प्रोजेक्ट के लिए वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, और कंपल्सरी यहाँ पे आपको एक्टिव करना ही है। अगर आप ये करना भूल गए तो वो टास्क एक्टिव नहीं होगा। मतलब कि जब एम्प्लॉय वो टास्क फिलअप करने जाएगा ना तो उनको ये टास्क का नाम नहीं दिखेगा, अगर वो एक्टिव पे टिक मार्क नहीं है तो। ये सब डेटा फिलअप करने के बाद आप अपडेट कर दो तो ये बन के आपके टास्क ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट है मेरा टास्क टाइप मास्टर। अब जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्ट में बहुत सारे टास्क होते हैं, तो उसमें कोई मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है और कोई मेरा मॉडरेट प्रायोरिटी पे होता है, और कोई ऐसा होता है कि चलो मैं 10 दिन के बाद भी करूंगी तो वो चलेगा, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मेरा टास्क का टाइप क्या है वो मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा टास्क कौन से प्रायोरिटी पे है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली टाइम शीट में जाओ, टास्क टाइप मास्टर में जाओ और यहाँ पे जाके आपको ऐड करना है। जैसे ही ऐड करोगे आप अपने टास्क का टाइप लिख सकते हो, जो भी आपको रखना है, हाई रखना है, मॉडरेट रखना है, मीडियम रखना है, लो रखना है, जो भी आपको रखना है वो यहाँ से रख सकते हो। डिस्क्रिप्शन भी अगर रखना है तो आप लिख सकते हो एंड देन सिंपली सेव कर दो। नेक्स्ट मास्टर इज माइलस्टोन मास्टर। अब जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो पहले वो स्टार्ट होता है, देन उसका कोई इंटरमीडिएट पार्ट होता है, इधर यू कैन से फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, एंड देन जाके आप उनको डिलीवर करते हो, राइट। सो फॉर दैट इन ऑर्डर टू डिफाइन दिस एवरी स्टेज आपको क्या करना है, माइलस्टोन मास्टर बनाना है। इसके लिए आपको जाना है टाइम शीट पे, माइलस्टोन मास्टर पे। जैसे ही आप वहां पे जाओगे, ऐड करोगे तो आपको पूछेगा माइलस्टोन का नाम एंड देन डिस्क्रिप्शन कि भाई आपको क्या डिस्क्रिप्शन रखना है, एंड देन सिंपली
सेव करना है। और हमारा जो लास्ट है वो है ओवरहेड मास्टर। ओवरहेड मास्टर इज नथिंग बट आपको पर्टिकुलर कोस्ट, और वो कोस्ट की कौन से दिन से स्टार्ट हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट पे आप लगा रहे हो, वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो इसके लिए टाइमशीट पे जाओ, ओवरहेड मास्टर सिलेक्ट करो एंड देन ऐड करो। जैसे ऐड करोगे आप देखोगे यहाँ पे इफेक्टिव डेट पूछेगा, प्रोजेक्ट का नाम आपको पूछेगा, वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है वो भी पूछेगा, एंड देन आपको सेव करना है। अब ये जो इफेक्टिव डेट है इज नथिंग बट द प्रोजेक्ट कहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है वो वाली डेट है। ये सब फिलअप करने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है। तो ये हो गए मेरे 5-6 मास्टर्स के भाई कोई भी टाइमशीट स्टार्ट करने से पहले ये मैंडेटरी है कि पहले प्रॉपर इम्प्लीमेंट करो, तब जाके एट द एंड आपको एक्यूरेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आपने इम्प्लीमेंट कर दिया पूरा टाइमशीट मास्टर। अब एम्प्लॉय को जाके वो टाइमशीट फिलअप करनी है, तो उनको क्या करना है, अपने ESS पोर्टल में से जाना है, मेन्यू में जाके जैसे वो एम्प्लॉय पे टिक मार्क करेंगे, यहाँ पे उनको दिखेगा टाइम शीट, वहां पे उनको सिलेक्ट करना है टाइम शीट। जैसे ही वो सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन उनका विंडो जो ओपन होगा कि उनको ऐड करना है। तो उसके लिए आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे एम्प्लॉय का नाम तो आ ही जाएगा, एप्लीकेशन डेट मतलब वो हर डेट वाइज कर रहे हैं इसलिए डेट का नाम। अब टोटल ड्यूरेशन मतलब कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे टोटल कितना काम किया है वो यहाँ पे ऐड करना है। देन प्रोजेक्ट का नाम ऐड करना है, कौन से टास्क पे उन्होंने ये ड्यूरेशन टाइम स्पेंड किया है, वो टास्क का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन इफ रिक्वायर्ड वो डिस्क्रिप्शन उनको लिखना है। सेम अगर कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट है जो अटैच करना है वो भी यहाँ पे जाके ब्राउज में जाके वो अटैच कर सकते हैं। एंड देन सेव, जैसे वो सेव करेगा दैट पर्टिकुलर डे पे वो दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे उन्होंने कौन से टास्क पे कितना काम किया, ये सभी रिकॉर्ड उनके एडमिन या फिर रिपोर्टिंग मैनेजर के पास आ जाएगा। सेम कि चलो भाई मैं तो भूल गई कि मुझे रोज करना है, कोई हो सकता है कि कोई भी XYZ रीजन की वजह से वो लोग भूल सकते हैं, तो उनको एक साथ पूरे वीक का भी करना हो तो वो सेम कर सकते हैं कि उनको सिंपली जाके ऐड करना है, टाइम ड्यूरेशन ऐड करना है, देन प्रोजेक्ट का नाम क्या है, टास्क का नाम क्या है। तो अब मंडे टू संडे तक उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन रिमार्क्स क्या रहेगा, प्रोजेक्ट का नाम एंड टाइप क्या रहेगा, ये सभी डिटेल्स वो यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। दैट हाउ एम्प्लॉय कैन फिल अप द टाइम शीट अ डे वाइज अलोंग विथ पूरे वीक का। तो इस तरह से उन लोगों ने टाइम शीट तो फिलअप कर दी। जैसे ही हम लीव की रिक्वेस्ट या फिर अटेंडेंस रेगुलराइजेशन की रिक्वेस्ट जो भी है वो मतलब अप्रूवल फ्लो हमने देखा है लाइक, तो सेम अप्रूवल फ्लो आप लोग सेट कर सकते हो फॉर टाइम शीट एज वेल। उसमें क्या रहेगा कि एम्प्लॉय को टाइम शीट फिलअप करना है, वो रिक्वेस्ट जाएगी उनके रिपोर्टिंग मैनेजर के पास या फिर जो भी आपने फ्लो डिसाइड किया उस तरह से वो लोग लाइक वाइज अप्रूव्ड एंड रिजेक्ट करेंगे। तो दिस हाउ पूरा टाइम शीट विल वर्क। अब एज एन एडमिन पैनल आई कैन ऑल्सो सी कि भाई कितने लोगों ने टाइम शीट फिलअप किया है, कब किया है, कितने आवर्स वर्किंग आवर्स है, और डेली किया है या पूरे वीक का किया है, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हुआ पूरा टाइम शीट मॉड्यूल। इट्स वेरी इजी कि भाई आप पूरा इम्प्लीमेंट करो और एम्प्लॉय के पास से एक्यूरेटली पूरे आप टाइम शीट वो लोग किसमें कौन से टास्क पे कौन से प्रोजेक्ट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो आप देख सकते हो। नाउ अब मेन टाइम शीट का हमारा जो पर्पस था कि भाई आपको बिल्डिंग करना है, हमने जैसे कॉस्ट डिफाइन किया 2-3 स्टेज पे कि भाई ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट इतना है, तो ऑब्वियस आपको वो रिपोर्ट्स चाहिए होंगे कि भाई एम्प्लॉय ने कितना टाइम स्पेंड किया रिगार्डिंग उनका कॉस्ट कितना आया, पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना हुआ, वो सब आपको चाहिए राइट। तो उसके लिए सिंपली हमारे पास रिपोर्ट्स है
जो टाइमशीट के बहुत सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है, आपको जाना है रिपोर्ट्स में, उसमें जाना है टाइमशीट रिपोर्ट्स में, जहाँ पे 5-6 अलग अलग रिपोर्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने 2-3 दिखाए हैं, जैसे कि एम्प्लॉय पोस्टिंग। तो आप देख सकते हो कि भाई दिस इज एम्प्लॉय, उनका सैलरी हेड क्या है, उन्होंने उन्होंने पूरे टोटल आवर्स में कितने आवर्स, देखो यहाँ पे देख सकते हो कि उनके टोटल आवर्स कितने हैं, कितने आवर्स उन्होंने स्पेंड किया है और कौन से प्रोजेक्ट पे स्पेंड किया है। प्रोजेक्ट वाइज भी आप देख सकते हो कि भाई कितना परसेंटेज किया है, कितने आवर्स काम किए हैं और डिफरेंस कितना है, कि भाई डिसाइडेड इतना हुआ था और इतना काम किया और इतना डिफरेंस आया। सो दैट्स हाउ यू कैन सी द कोस्टिंग एज पर एम्प्लॉय। सेम जैसे हमने पहले देखा कि हम प्रोजेक्ट वाइज भी कोस्टिंग क्या है वो देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट वाइज कोस्टिंग का रिपोर्ट जनरेट करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, कितना डेटा हुआ कैप्चर, कितना कॉस्ट हो रहा है, ओवरहेड, मतलब फॉर एन एग्जांपल ओवरहेड कॉस्ट किस तरह से काउंट होता है कि भाई 5 एम्प्लॉय है जो इस काम कर रहे हैं, उनका कंसोलिडेट डेटा ओवरहेड में आ जाएगा और टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है वो सब कि भाई जहाँ पे पर प्रोजेक्ट में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने आवर्स डिसाइड किए गए हैं और कितने आवर्स एम्प्लॉय ने एक्चुअली काम किया है। लाइकवाइज उनका कॉस्ट पर आवर कितना है और कंसोलिडेटेड पूरी टीम का कितना कॉस्ट रहेगा, ये पूरा रिपोर्ट भी ओवरहेड कॉस्टिंग रिपोर्ट में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टाइम शीट। कि भाई आपने देखा कि एक बार प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर दो एंड देन यू कैन असाइन टू योर एम्प्लॉय कि भाई आप अपना टाइम शीट स्टार्ट कर दो, सो दैट आपके हर एक प्रोजेक्ट का पूरा ट्रैक रहेगा कि फ्रॉम द फर्स्ट टू द एंड टू द डिलीवरी टू योर क्लाइंट आपके यहाँ पे कितना कॉस्टिंग रहा, कहाँ पे लूप होल आ रहा है, एवरीथिंग यू कैन आइडेंटिफाई विथ टाइम शीट मॉड्यूल। सो this I would like to ask you, if you have any query regarding the mobile application and the timesheet, you can comment here, and I would like to Sonia to take a hand over. Thank you so much, Nidhi. Now we are moving forward to question answer session. If anybody has queries regarding queries or concerns regarding mobile application and timesheet, they can raise. One more thing, there would be a poll which will be shown in your screen. Everybody is requested to please answer that poll. Everybody is requested to please answer this poll. I think we have collected all the responses. We have collected all the responses. Thank you so much, guys, for sharing your reviews for the poll.
If anybody has the concerns or queries related to the today's webinar, they can raise in the question box. Okay, so one question is here from Mr. Hitesh Patel. He is saying that he don't have timesheet module, so it is necessary to purchase it separately. Hello. Yes, Sonia. It might be necessary for it to purchase separately. Okay. Yeah. We have already provided the answers simultaneously within the webinar. If anyone has the question, they can raise. So Mr. Farooq is asking that we have a pharma company and we are running 4 shifts. So will it work? Yes, yes. Mr. Farooq, Sorry, can you please? just yeah. Hmm. I just wanted to say one thing. Mr. Farooq, can you specifically ask the question? This question is regarding timesheet or mobile application. Okay, this question is regarding mobile application. So he's working in pharma company, has 4 shifts. So this will work or not in mobile application? यस 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 इट विल वर्क. यहाँ पे आपको जो शिफ्ट है वो तो एडमिन पर्सन वहां पे एडमिन में ही डिफाइन करेगा. एम्प्लॉयज को जाके पंच इन और पंच आउट करना है. फॉर एन एग्जांपल मैं मॉर्निंग शिफ्ट में जा रही हूँ, मुझे जाके सिर्फ पंच इन करना है. वो डायरेक्टली सिंक हो जाएगा ऑटोमेटिक कि भाई मेरी शिफ्ट कौन सी है. अगर मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा है इट डजेंट मैटर कि भाई जो भी शिफ्ट हो उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है. जो भी एम्प्लॉय का टाइमिंग होगा वो अपनी नाइट शिफ्ट में मैं जा रही हूँ राइट. तो मुझे नाइट शिफ्ट में मैं जैसे ऑफिस जाऊंगी मैं मेरा क्लॉक इन करूंगी, जैसे मॉर्निंग में वापस आ रही हूँ मैं क्लॉक आउट करूंगी. सिंक वाइज वो मेरी शिफ्ट के साथ हो जाएगा. Okay. I hope Mr. Farooq is clear with the solution. Now, one more question is there. Can we have hierarchy and approval authority, or there is only one approval authority? In a mobile application? Yes, this is in regards to mobile application. Yes, it may work as a hierarchy. Okay. The next question is from Mr. Sanjay. He's asking, in case we upgrade to web application from existing Orange payroll, can we still use the existing device for punching? Yes, yes, there is nothing concerned with the orange payroll. मतलब आपकी एप्लीकेशन अपग्रेड हुई है, आपको अपना वेब पैरोल अपडेट करने की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज, मतलब कि फॉर एन एग्जांपल मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है, और मैं कल बाहर जा रही हूँ, तो आज मैंने ऑफिस से पंच किया है और नेक्स्ट डे मैं बाहर जा रही हूँ तो मैंने मोबाइल से पंच किया है. तो उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. वो अटेंडेंस प्रॉपरली ही फैच होगी, सिर्फ मेरा क्लॉकिंग होना चाहिए उसमें. Okay. Yeah. I hope Mr. Sanjay is clear with the solution. Now we are taking the last question of the section. Mr. Hitesh is asking that how can I give rights to mobile application menus? ओके देखो, फॉर मोबाइल एप्लीकेशन Yes, for mobile application. एज एन एचआर पर्सन दो चीज ध्यान रखनी है. यस यस, फॉर दो चीज आपको ध्यान रखनी है. पहले तो हर एक एम्प्लॉय को मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एक्टिवेट करना पड़ेगा. जो एम्प्लॉय मोबाइल के लिए एक्टिवेट होगा वही एम्प्लॉय उसको एक्सेस कर पाएंगे. सेकेंड थी कि मोबाइल के राइट्स, जैसे ही हम ईएसएस के प्रिविलेज देते हैं उनमें मोबाइल के राइट्स होते हैं. लाइकवाइज जो राइट्स आपको देना है आप टिक मार्क करके दे सकते हो. जो राइट्स आपको एम्प्लॉइज को प्रोवाइड नहीं करना है सिंपली आपको वो अनटिक करके अपडेट करना है. तो इन ऑर्डर टू एप्लीकेबल फॉर एनी एम्प्लॉय टू यूज मोबाइल देयर शुड बी, पहले आपको जैसे मैंने बोला एक्टिवेट करना है, देन रिगार्डिंग राइट्स देने हैं.
Okay. So, with the end of this question answer session, we would like to thank Ms. Nevi and Mr. Hardik for sharing such an such a valuable information with us. I would also like to thank all the attendees who invested their time with us and joined this webinar. Further to all the attendees, you can email or you can share your queries or valuable feedback at feedback@orangecontact.com. We will address your queries as soon as possible and will share your feedback with our internal team. Once again, thanks to all the attendees for joining this session. Please be at home and be safe with your loved ones. Thank you so much. Okay. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.